So question number 8 says 3 cot A equals to 4. This is our problem and हमें चेक करना है. We have to check 1 minus tan square A over 1 plus tan square A. क्या ये वैल्यू जो आएगी वो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है इसके अंदर. सो जो हम करते हैं वही करते हैं. वी नो डैट अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा. तो cot A इक्वल्स टू 4/3. ठीक है. RHS बनाना है हमारे को, ये LHS ये बनाना है, RHS ये वाला पार्ट बनाना है हमें. ठीक है. सो tan बनाना है. वी नो डैट व्हाट इज tan A. tan A विल बी cot A. ये हम बात कर चुके हैं पहले भी. तो this will be 1/4/3. this is 3/4. ठीक है. tan की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. हम जानते हैं tan क्या होता है. tan will be perpendicular upon base. so this will be perpendicular upon base. ठीक है. तो हम अज्यूम करते हैं लेट अ ट्रायंगल A B C where angle B is 90 degree and here is our angle A. For A, perpendicular is 3, base is 4. Since in this problem we don't have any unit, so let's assume K will be the unit. K कुछ भी हो सकता है, K सेंटीमीटर, mm, कुछ भी. K is unit here. So again we have to find out the value of AC. So applying the Pythagoras theorem, we get AC square equals to BC square plus AB square. AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 3K. तो 3K का मैं स्क्वायर करता हूं तो ये हमारे पास आता है 9K स्क्वायर प्लस AB इज 4K. ठीक है. तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और K का K स्क्वायर. दिस विल बी 16K स्क्वायर. 16 plus 9 will be 25K square. So AC will be plus minus root of 25K square. The value will be plus minus 5K. 25 का तो 5 रूट आ गया और K स्क्वायर का K हो गया है. तो AC की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस 5K. Since only positive sign is considering, so AC will be 5K. अब AC 5K आ गया है हमारे पास. ठीक है. तो हम LHS को देखते हैं. LHS 1 minus tan square A, 1 minus tan square A over 1 plus tan square A. ये हमारा क्या है LHS है. अब tan A की वैल्यू हमारे पास है 3/4. पुट कर देते हैं वैल्यू उसके अंदर. दिस विल बी 1 माइनस tan A क्या है 3/4 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. दिस कम्स आउट 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 ओवर 1 प्लस 9/16. ठीक है. ऊपर की तरफ एलसीएम लेंगे, नीचे भी सेम एलसीएम लेंगे. सो दिस विल बी
ऊपर वाला एलसीएम 16 आएगा, ठीक है, 16 टाइम्स जाएगा एंड 16 माइनस 9, ये ऊपर वाला टर्म हो चुका है। देन बड़ा वाला हमारा डिवाइड का साइन, सेम दिस विल बी 16 प्लस 9 ओवर 16, ठीक है। सिंस 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट 16 minus 9 will be 7 over 25. This is over LHS. Now taking RHS. So in RHS we need cos square A minus sin square A. So first of all we have to find out the value of sin A and cos A. So what is the sin A? This comes out 5k. Sin A. Sin A will be BC upon AC. BC upon AC. BC is 3k and AC is 5k. So this will be 3 upon 5. What is cos A? Cos A AB upon AC. The value of AB is 4k and AC is 5k. So this will be 4 over 5. We have both the values, cos square, sin square. Now LHS, cos square A. So LHS says cos square A minus sin square A. LHS says cos square A minus sin square S. So cos A will be 4 over 5. So this will be 4 over 5 square minus 3 over 5 का whole square. Now solving, this will be 16 upon 25. This will be 9 over 25. Since LCM is 25, 25 वन टाइम गया ये और 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया हमने, 16 माइनस 9. सो दिस 16 में से 9 गया तो 7 upon 25 will be over RHS. Now both the values are same, hence we can say LHS equals to RHS. हमें यही देखना था, चेक करना था कि LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है नहीं आती है. सो वी गेट 7 upon 25 in both the hands. So this is your solution number 8. So in the ninth question it is given that there is a ABC triangle जिसके अंदर क्या है, एंगल B 90 डिग्री है एंड इस बार हमें tan A गिवन है which is 1 upon root 3 and we have to find out first sin A cos C plus cos A sin C. सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है cos A cos C माइनस sin A sin C. तो ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल here is your problem. So we have tan A. So now draw a right angle triangle. Sorry. This is A, B and this is C. Angle B is 90 degree
ठीक है, ए बी एंड सी, दिस इज ट्राइंगल tan A equals to, we know that what is it, tan is a perpendicular upon base, so this will be perpendicular upon base. The sign of perpendicular will be this, so this will be perpendicular upon base, so BC equals to 1 and base is equals to √3. अगेन ये उसी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो गया है जो हम अभी तक करते हुए आए हैं. सो लेट्स अप्लाइंग दी के. के स्टैंड फॉर यूनिटी. के यूनिट है यहाँ पर, सेंटीमीटर, एमएम, मीटर, कुछ भी हो सकता है ये. नाउ अप्लाइंग दी पाइथागोरस थ्योरम which is AC square equals to AB square plus BC square. So AB square, that's mean √3 K square plus 1 K square. So √3 into √3, we know that √3 into √3 will be the 3. ठीक है, so this will be 3 and K square plus 1 square 1 and K, so that will be K square. So AC square will be 3 and 1, 4K square. Now the value of AC will be plus minus √4K square प्लस माइनस 4 का हो जाएगा √2 और K स्क्वायर का. सो वी ओनली टेकिंग द पॉजिटिव साइन. क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है. सो दिस विल बी 2K. ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस 2K. नाउ we have to find out sin A cos A. ठीक है, लेकिन कुछ टर्म में क्या है, cos C भी इंक्लूडेड है यहाँ पर, cos C sin C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A cos A. ठीक है, यहाँ सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं, देन उधर कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट sin A एंड इधर cos A को कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में. तो व्हाट इज अ साइन? साइन A विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस विल बी BC ओवर AC. सो 1K अपॉन 2K. सो दिस विल बी 1 अपॉन 2, हाफ. नाउ cos A विल बी AB अपॉन AC. √3K over 2K. So this will be √2 upon √3 upon 2. ठीक है. Now cos C and sin C, these are two unknowns. So for that again we make a right triangle angle where we are considering this angle. This is C, A and B. Since एंगल के सामने वाली लेंथ हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, सो ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, विच इज √3K. ये हमारी 1K है ही और ये हमारी 2K आई चुकी है. सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस and this will be hypotenuse. Hypotenuse जो लेंथ होती है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है. सो ये कॉमन ही रहेगी हमेशा सब में, ये चेंज होते रहेंगे हर एंगल के लिए. तो हमें चाहिए पहले sin C और cos C. What is the sine? Sine is perpendicular upon hypotenuse.
So for C, this will be perpendicular AB upon AC. So this will be root 3k over 2k. Root 3 upon 2. Now cos C. Cos C will be base upon hypotenuse. So BC upon AC. BC के है अपने पास 1k over AC 2k. This will be half. Now first sin A. Sin A cos C plus cos A sin C. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, सो सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज अ sin A? Sin A will be half into cos C. Cos C is half plus का sin cos A. Cos A is root 3 upon 2 into sin C. Sin C is again root 3 upon 2. Now this will be 1 upon 4 plus root 3 into root 3. This will become 3 and 2 and 2 4. 1/4 and 3/4 will be 1. So this is our first. Now second question says that cos A dot cos C minus sin A sin C. So cos A is root 3 upon 2 into cos C half 1 by 2 minus sin A. Sin A is half and sin C is root 3 upon 2. Since both are the same, so this will be cancel out and your answer will be 0. So here is your solution. So in this problem हमें दे रखा है एक ट्राइंगल PQR, इसमें एंगल Q हमारे पास 90 डिग्री है एंड एक रिलेशन दे रखा है हमें PR plus QR. PR plus QR equals to 25. Then we have to find out the value of sin P, cos P and tan P. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम इसके अंदर. So PR square equals to QR square plus PQ square. ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज करने वाला हूं. मैं यहाँ से QR की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं. तो 25 में से मैं PR को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. ठीक है, इस PR को मैंने RHS में मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, तो नेगेटिव साइन के साथ में. अब वैल्यूज में यहाँ पुट करता हूं. सो दिस PR स्क्वायर इक्वल्स टू QR की जगह मैं पूरी वैल्यू लिखता हूं यहाँ पर 25 माइनस PR होल स्क्वायर प्लस PQ इज 5. PQ इज 5. ठीक है, अब मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से मैं इसको ओपन करता हूं. सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो PR स्क्वायर equals to 25 square plus PR square minus 2AB. 2 into 25 into PR. So 25 into 2 will be 50 and PR 5 square 25. So PR square equals to, now bracket is removed, 25 square
625 plus PR square as it is and 50 PR and this is 25. Now 625 and 25 will be 650 plus PR square minus 50 PR. यहाँ पर मेरे पास क्या चल रहा है, PR स्क्वायर चल रहा है. सो PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है. ठीक है, अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तब हमें क्या बचता है ये 50 PR इक्वल्स टू 650. Now PR will be 650 upon 50. So PR will be 13 times. Unit is centimeter. That's why we have to put centimeter here. So PR will be 13 centimeter. Therefore QR will be 25 minus 30. So QR will be 12 centimeter. So QR is 12 centimeter and PR is 13 centimeter. So we have calculated both the things. Now, according to our problem, we have to find out the value of sin p, cos p, tan p. So sin p will be, since this is our measuring angle, एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस. सो साइन पी विल बी परपेंडिकुलर इज QR over PR. QR over PR. So this will be 12 over 13. Now cos p. So cos p will be base over hypotenuse. So this will be PQ over PQ over AC. PQ over PR. So this will be 5 over 13. Sin, cos and tan. So tan will be perpendicular upon base. So this will be QR over PQ. So 12 over 5. So this will be our solution number 10. So क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले हमें टेबल बनाना सीखेंगे जो 8.2 एक्सरसाइज में हमारी काम आएंगी. ठीक है, और बहुत सिंपल है टेबल बनाना, आप सीख जाएंगे इसको तुरंत ही. सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा. ठीक है, ये हमारे रेशियोज हैं. बहुत सिंपल टेबल है ये. दिस इज फॉर 0 डिग्री, दिस इज फॉर 30 डिग्री, दिस इज बहुत this is for 45 degree, this is for 60 degree and this is for 90 degree value. ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेबल एग्जाम टाइम से पहले आप अपनी
रफ वर्क के अंदर बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स की ट्रिक ये है कि आपको इनिशियल साइन की आप 5 वैल्यूज पूरे याद कर लें। सबसे इजी ट्रिक ये है, ठीक है। तो 0, 1/2, 1/√2, 3/2, √3/2 एंड 1। ठीक है, तो अगर आप ये वैल्यूज याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत आने नहीं वाली है। ठीक है, ये 5 वैल्यूज आप याद कर लीजिए। वैसे भी अगर आप फर्दर स्टडीज करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब इसके बाद सारा खेल तुरंत देखो अभी हो जाता है। अब कॉस के अंदर ये सारी वैल्यूज को रिवर्स करके आप लिख दीजिए। यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर √3/2 लिख दीजिए एज इट इज, ये एज इट इज के नीचे आएगा। ठीक है, 1/2 इधर आएगा और 0 इधर आ जाएगा। वेरी सिंपल। नाउ 10, तो हमें पता है क्या, देखो 10 की जो वैल्यू होती है tan थीटा विल बी sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये पता है हमें, ये होता है। अब sin की वैल्यू हमें पास गिवन है, cos की वैल्यू हमें गिवन है, तो tan की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 0/1, 0/1 क्या होगा, 0/1 हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, 1/2, ठीक है, ऐसे मान लो ये 1/2 है ओवर √3/2। सो 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी 1/√3, सो दिस विल बी 1/√3, दिस इज 1। ठीक है, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास √3/2 ओवर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी √3। ठीक है, और स्टूडेंट्स देखिए 0/1 विल बी 0। ठीक है, लेकिन अगर ये 1/0 होता है तो ये कभी 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, अनकाउंटेबल हो जाएगा ये, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा। तो दिस विल बी इंफिनिटी, कभी आप इसको काउंट कर ही नहीं सकते हो एंगल को, इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी में से ना तो कुछ ऐड किया जा सकता है, तभी भी अगर कर देते हैं तभी इंफिनिटी रिजल्ट आएगा। इंफिनिटी में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो भी इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इंफिनिटी। नाउ कॉट, कॉट में क्या करना है, एज इट इज जैसे कॉस में किया है वहां से इसको हमने उल्टे तरह से लिखना स्टार्ट कर दिया है। सेम टू सेम रिवर्स करके आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर भी सेम। दिस विल बी इंफिनिटी √3, this will be 1/√3 and 0 as it is। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन कॉस tan कॉट आपने सीख लिया। नाउ सेक। ठीक है, अब हमें पता है सेक क्या होता है, सेक थीटा इज नथिंग बट दिस इज द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यूज को जस्ट इनवर्स कर दीजिए, आप उल्टा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 1 को अगर आप ऐसे लिखेंगे 1/1, दिस विल बी 1, सो दिस विल बी 1। √3/2 को जब आप 1 के साथ में रखेंगे 1/√3/2, सो दिस विल बी 2/√3। ठीक है, सो दिस विल बी 2/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2, 1/√2 इनवर्स कर दीजिए, सो दिस विल बी √2। 1/2 इनवर्स कर दीजिए 2, और 0 को क्या होगा, 0 को इनवर्स करते देखो क्या बनेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं कॉस की 1/0, तो 1/0 विल बिकम इन्फिनिटी, सो दिस विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, कॉसेक के लिए क्या ट्रिक है, साइन को इनवर्स कर दीजिए आप। ठीक है, हमें क्या पता है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा।
ठीक है, ये आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, ये वैल्यूज को रिवर्स करके लिख दीजिए, एक ही बात है, आप रिवर्स करके लिख दीजिए। सो दिस विल बी infinity, here is 2, here is root 2, here is 2 over root 3 and here is 1. So this is your table for angles, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको एग्जाम टाइम में पता होनी चाहिए अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो। सो ये टेबल बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट हमें दे रखा है, 11 का फर्स्ट हमें दे रखा है कि tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो tan a की वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा 1 से छोटी होती है क्या? क्वेश्चन ये बोल रहा है, हमेशा हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है tan a की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू दिस टेबल। सो दिस इज tan, ठीक है, दिस इज 0 लेस देन 1 अपॉन रूट 3 इज लेस देन 1, ठीक है, 1, तो 1 पे तो ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि tan a की वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल तो होगी tan के, tan a की जो वैल्यू है वो 1 के तो इक्वल हो सकती है, उससे छोटी हमेशा नहीं हो सकती है। कैसे? रूट 3 है, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3 विल बी 1.732, रूट 3 की वैल्यू होती है। सो रूट 3 भी वैल्यू होती है tan की, ठीक है। tan a की वैल्यू रूट 3 भी होती है विच इज 1.732। तो ये कहना हमेशा गलत होगा कि tan a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका रीजन ये है कि tan a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है, tan a की वैल्यू 0 भी हो सकती है। टेबल के थ्रू देखिए आप, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, और रूट 3 का मतलब है कि वो 1.732 मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा क्या कह रहा है, ये गलत, कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी हो। सो दिस विल बी फॉल्स। रीजन आपके सामने है टेबल के थ्रू। तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि फॉर sec a, फॉर sec a 12/5, sec a की किस वैल्यू के लिए 12/5 होना चाहिए, ठीक है। तो sec a के टेबल में जाते हैं हम, sec, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसकी वैल्यू लाई कर रही है इंफिनिटी पे जा रही है, ठीक है। 1 से हमेशा क्या होगी? ज्यादा ही होगी, ठीक है, 1 से बहुत ज्यादा है वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। कैसे आएगी? 12 में आप 5 का डिवाइड लगाएं, सो दिस विल बी 2.40 करीब वैल्यू जाती है ये, ठीक है। और sec के अंदर क्या है? 1 से सारी वैल्यूज ज्यादा ही मिलेंगी आपको। सो दिस इज अ वैलिड, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। रीजन क्या है इसका कि sec के अंदर सारी वैल्यूज जो है वो 1 से बड़ी हैं, 1 है और 1 से बड़ी है। सो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 2.40, ठीक है। सो ये वैल्यू क्या कर रही है? 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच के अंदर कहीं लाई कर रही है वैल्यू है। सो दिस इज द ऑल ट्रू आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमें? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमें कि cos a cosec a है या नहीं है, ठीक है। तो cos a अलग होता है, cosec a अलग होता है। सो दिस इज इनवैलिड,
So this is false. This is false. cos a और cos a के कोई बराबर हो ही नहीं सकता, अलग अलग वैल्यूज है दोनों की. So this will be false. Fourth one is क्वेश्चन में बोल रहा है cot a cot into a होता है क्या? नहीं, कभी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और दिस इज मल्टीप्लाई. ठीक है, हमने एंगल फाइंड आउट करना सीखा है, ना कि मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो दिस विल बी फॉल्स. फिफ्थ वन इज क्वेश्चन सेज sin 4/3. sin 4/3. तो sin 4/3 विल बी, इसकी वैल्यू है वो 1 से ज्यादा ही होगी क्योंकि 4 बड़ा है 3 से. तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.66. दिस विल बी 1.66. ठीक है, अब साइन की टेबल में आते हैं हम, तो 1.66 यहाँ पर जीरो इसकी मैक्सिमम, सॉरी जीरो इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, तो जीरो मिनिमम है, मैक्सिमम 1 है. ठीक है, इसकी रेंज क्या है? 0 से 1 की तरफ. सो दिस इज 0. ठीक है, उससे बढ़ रही है, फिर उससे बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर 1. ठीक है, तो 0 इसकी मिनिमम है और मैक्सिमम क्या है इसकी? 1 है. तो ये वैल्यू तो ज्यादा आ रही है हमारे पास 1.66. तो आउट ऑफ रेंज हो गया है, तो 1 से ज्यादा आ गई. ठीक है, तो ये क्या है? पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. ठीक है, तो ये टेबल इन सब चीजों को क्या करती है? रिजल्ट बताती है कि क्या सही है और क्या नहीं.